and we have also spoken about how different is file system, how DBMS is different from file system. So before we started with before DBMS came into picture, DBMS is nothing but database management system. What database management system does is it allows you to store information or handle information. And when we are talking about relational database like SQL, Oracle, and MySQL and SQL Server, all these databases, these are relational database where information or data is stored in the form of tables. We have seen how to create tables. Okay. Now, so before DBMS came into picture, there was file system. So data was stored in the form of files. Normal अपना file system जैसा होता है. So obviously, जब file system में था, तो there were various disadvantages of that, and that is the reason DBMS came into existence. Okay. So first thing, what we can do with DBMS is this I have explained in the last lecture also. So can somebody tell me what do you mean by data definition? How do you define data? What do you mean by data definition using DBMS? So when we create table and we add data into it, when we are creating table, तो हम क्या कर रहे हैं कि data को define कर रहे हैं ना कि हम अपना data कैसे store करें. Now, if I'm creating table, so I'm telling at the time of table creation, मैं क्या बोल रही हूँ? I'm telling this create table, and I'm giving some name to the table. That's a student, and then I'm also telling you that how many columns will have. So I say ID, name, age, और जो भी information आपको डालना है, city, phone number, email ID. तो ये मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं बता रही हूँ कि मैं डेटा को कैसे स्टोर करने वाली हूँ. So मैं स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी पर्सनल डेटा है, पर्सनल डेटा ऑफ स्टूडेंट, I'll be storing in one table. Maybe the other data, that is the financial data, या फिर family data, family related data जो होता है. 1 minute. Okay. Family related data. Let's say family related data of जो students है, that is parent, yeah, father's name, mother's name, then qualification, उनके qualification, उनका age, father का age, mother का age, then maybe an annual income. ये सारा जो information है related to student, I might be storing it in a different table. So what am I doing? I am defining my data. I am defining where my data is being stored and how it is being stored. Okay. How मतलब मैं ये बताती हूँ ना कि ID, अगर मैं ID बोलूँ तो ID में when I'm creating the table, I also say कि ID के अंदर हम सिर्फ integer values ले रहे हैं, तो I'll declare it integer. If we are taking ID, and if we are taking varchar also, मतलब characters also, then I'll declare it as varchar. Correct. Now we have seen that ID can either be in some colleges the ID is just roll numbers 1, 2, 3, 4 like this, and some colleges have it along with the जैसे अगर आप BCA से हो तो roll number can be BCA 001, something like that. So it can either be characters or integers. So at the time of data definition, we are also telling how we are storing the data, where we are storing, how we are storing, in what format we are storing. And also you can later change the format of storing. So modification is also possible. मतलब अगर मुझे suddenly realize हो कि तो कुछ बच्चे जिनके पास दो phone number है, तो I can add another field where I'm going to store phone number of another phone number. So data definition is, it helps in creation, modification, and removal of definition that define the organization of data in the database. How data definition is how you're going to store. So the creation of the table, you can modify the existing table. I'll show you what are the commands to modify the existing table in some time. You can also remove data from the
data from the table. So when I'm from the database. So when I'm talking about removal of data from the database, I'm talking about removing the entire table. You can remove the entire table. You can delete the entire table, or you can delete certain columns from the table. All that is possible. All that is related to data definition, because ये सब किससे related है कि आप data कैसे store कर रहे हो. So creation of the table, modification of the table, that means adding more columns or deleting some columns, or removal, मतलब deleting some columns is removal or deletion, or deleting the entire table. All this comes under data definition. I hope this is clear. Yes, you all can hear me, right? Why I'm not getting any response today? Hello, is this clear? Okay. Next is data updation. Data updation मतलब data definition हमने define कर दिया कि हम data कैसे store करने वाले और कहाँ पे store करेंगे. अब इसके अंदर जो हम data डालते हैं, ये जो data है, ये जो पूरा row का data होगा. So let's say this is and some name ABC, age, some age, phone number, सब ईमेल, ये सब जो हमने वैल्यूज डाला, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये डेटा हम अपडेट कर रहे हैं इन द डेफिनेशन दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर द टेबल. So in data updation, what all comes? Insertion, modification, and deletion of actual data in the database. See, यहाँ पे है related to the entire organization of the data, that is related to the table. यहाँ पे है actual data. When you are inserting a data in the table, that is one thing. If you want to update, जैसे ये 16 था, अभी मुझे I made a mistake and this should be 17. Or maybe the student who was from Mumbai has now shifted to Delhi. Whatever, the phone number of the student has changed and you want to update it. So for updating this, if you're updating a record or information or data that is there in the table, it is related to data updation. Or you can, agar kisi student ne in the middle of the year or in the middle of the semester, if somebody leaves the college, you might want to delete the entire data related to that student. So you can delete the entire row. All this is data updation. Okay, so I hope there is the difference between data definition and data updation is clear. When we say data definition, we are talking about the entire table creation, entire updation of the table. So मतलब columns add करना या table को update करना, पूरे table को update करना. Deletion मतलब table में से पूरा column delete करना. All those are data definition. Data updation, when I'm saying, so I'm not talking about the structure of the table. I'm talking about the actual data that is present inside the table. So maybe inserting the data or updating the data or deleting the data. Is this clear? Data retrieval मतलब database से data निकालना. How do you retrieve data from the database? If I want to retrieve, so if I've created a table, उसके अंदर मैंने data भी store कर दिया. Now I want to retrieve that data. How will you retrieve? What is the command that is used to retrieve, or what is the query that is used to retrieve the data from the database? Select. Select is used to retrieve the data from the database. हम बोलते हैं ना select from where. So you give the select, may you give the column names that you want. If you want all the columns, you say asterisk. Then you give the table name जिससे चाहिए, so student. If there's certain condition you want to put, so maybe you can say where ID is greater than 102.
तो जिनका भी आईडी इज ग्रेटर देन 102 सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिए होंगे. अगर आपको कोई कंडीशन नहीं देना है, if you just say select asterisk from student, the entire table will be displayed, will be retrieved and will be displayed. Data definition means what data will store. डेटा डेफिनेशन मतलब डेटा स्टोर करने के लिए जो जगह चाहिए वो बनाते हैं हम ये डिफाइन करते हैं कि कैसा टाइप का डेटा स्टोर होगा. क्रिएशन, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम बताते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, तो इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहे हैं, इस डेटा टाइप में डेटा स्टोर कर रहे हैं. अंडरस्टूड? ना so DBMS allows you to provide data definition, data updation, data retrieval. It allows you to, it also provides certain user administrative rights. जैसे it helps in registering and monitoring user. Now, not everybody can access database. ये तो हम तो खुद अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो सर्वर तो हमारा ही सिस्टम पे. करेक्ट? इफ यू हैव सर्वर ऑन योर सिस्टम, देन यू आर द एडमिन. And if you are admin, you will be able to access it. What happens in the organization is the database is downloaded at one particular server or the system, and if logins are created for people who want to use it. Using that login only, that person will be able to use it. So he has to provide his login ID and the password, and then he'll be able to use it. So user administration, there are features which is provided by DBMS, which is all related to user administration. So there's a feature where you can register and monitor user. So anybody who is the admin of the database administrator, बोलते हैं companies में एक designation होता है database administrator. तो database administrator का ये काम है कि data यूजर्स जिनको यूज करना है डेटाबेस, उनको रजिस्टर और मॉनिटर करना. रजिस्टर करना मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड देना, एंड देन मॉनिटर करना कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट ऑल टेबल्स आर दे यूजिंग, उनकी बेसिकली लॉग्स मॉनिटर करना. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि कंपनी में मॉनिटरिंग है या नहीं, आपका प्रोसेस क्या है, क्या काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग monitoring is required or not required, but this is a feature which is provided by DBMS. You can register a user and you can also monitor what that user is using. Enforcing data security. So you can enforce data security मतलब आप डिफरेंट टाइप के जब यूजर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आप डिफरेंट टाइप के लॉगिन ऑथेंटिकेशन देख सकते हो. एक तो पहली बात उसका विंडोज लॉगिन होना चाहिए, फिर उसने अगर आपको चाहिए तो आप उसको दूसरा एक लॉगिन प्रोवाइड करो through which it can only access a particular set of tables. So all these things, enforcing data security, there are various ways that is provided by the DBMS through which you can ensure that also, you know, data security mein what else you can do is, what else can be done is you can be given, your login can be given only few access rights. So you will only be able to access those tables, or you will only be able to perform particular operations for which you have rights. Okay. Monitoring performance, you can monitor the performance of the using user administration. There's a feature where the database administrator will be able to monitor the performance of the system. User कौन से data को access कर सकता है? Yes, there is a command to do that, and the administrator has the right. So not everybody can do this. In your system also, अगर आपने जब हम डेटाबेस डाउनलोड करते हैं तो अगर आपको याद है तो मैं SQL plus, okay, this is Oracle. If I go here, see, I log in as SYS DBA, तो मैं admin जैसे log in कर रही हूँ, ठीक है? So if I log in as admin, I have the rights to give rights to somebody else. Yeah, that means I can grant privileges, उसको बोलते हैं grant privileges, to some other user. तो अब मैंने जितने भी यूजर क्रिएट किए हैं उनको मैं ग्रांट कर सकती हूँ राइट. तो यहाँ पे यूजर नेम आता है, कौन?
किस पे, so you can give all the table name, or you can grant all privileges, या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप grant all privileges ऐसा कर सकते हो, तो जो भी यूजर नेम उसको सारे privileges grant हो जाएंगे, or you can say grant select privileges, so all these various options are there, जैसे भी आप जो प्रिविलेज देना चाहते हो जिस यूजर नेम को और कौन से टेबल पे, ऑन टेबल, अगर आपने से बोला ग्रांट सेलेक्ट प्रिविलेजेस तो इट विल ग्रांट सेलेक्ट प्रिविलेजेस ऑन ऑल द टेबल्स, ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रांट प्रिविलेजेस, एंड बेस्ड ऑन दोस प्रिविलेजेस जिस यूजर को वो प्रिविलेज है वो सिर्फ उतना ही परफॉर्म कर सकता है. नो, इट इज नॉट used only in banks, it is used in normal organizations also. You being a आपने नई कंपनी ज्वाइन की है, you will not be given rights to all the tables, no, सारे database को आपको rights नहीं मिलेगा. You will only be given rights to the tables that are relevant to your process. जिस process में आप हो या जिस project में आप हो उससे related जो databases है आपको सिर्फ उसी का access मिलेगा, because आपको बाकी चीजों का use नहीं है, and बाकी चीजें प्रोजेक्ट सेंसिटिव डेटा है, कंपनी नहीं चाहती कि आपको वो डेटा पता चले, so it is used in all the organization. That is data security. Monitoring performances also can be monitored, and it is monitored by the DPS to see कि आपका सिस्टम बराबर चल रहा है या. Maintain data integrity. I told you earlier also. ये समझने के लिए ना थोड़ा जब हम ज्यादा डिटेल में डेटाबेस समझ लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जब मोर कमांड्स वी विल सी. डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है ना, ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दैट. जब हम ट्रांजैक्शन डिटेल में करेंगे तो आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल, सपोज I want to transfer 10 rupees from A account to B account. Okay, so अगर सपोज मैंने यहाँ से A अकाउंट से 10 रुपीज डेबिट हो गया, बट बी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ और कुछ तो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी वजह से मेरा जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. ए के अकाउंट में 10 रुपए कम दिख रहे हैं, बट बी के अकाउंट में 10 रुपए ज्यादा नहीं दिख रहे, वो 10 रुपए गए कहाँ. तो क्या हो रहा है, डेटा इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट. सो ऐसे चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है. जब हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल देखेंगे, you will realize that there are certain properties which the database automatically takes care of. So one of the properties, जब तक पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता और बीच में अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक हो जाता है या कंप्लीट नहीं होता, तो वो जो पहले के स्टेटमेंट्स हुए ना ट्रांजैक्शन के, वो भी रोल बैक हो जाते हैं, मतलब वो भी इफेक्टिव नहीं होते. मतलब if there are 10 statement in the transaction and only 5 were executed, and due to some network issue or server problem or anything else, if the transaction gets failed, then the 5 statements that were executed will also be rolled back. That means the effect of those 5 statements will not be seen in the database. That is one of the property, and it is implemented using transaction management. Okay, so that is data integrity. Dealing with concurrency control, last time मैंने आपको बताया था of example of IRCTC and BookMyShow. तो database एक ही है, 10 लोग एक साथ यूज कर रहे हैं, लेकिन there is a locking procedure जिसके through, जो अगर suppose if I am using a resource at a time, it will be locked for me. User को नहीं पता चलेगा. The other user will not come to know that it is locked for me. But this is what happens when you are done with that booking, then the booking या फिर आपने booking cancel की, whatever, then that resources will be freed and it will be available to everybody. That is known as concurrency control, and it is very important because without concurrency control, most of the applications जो हम बनाते हैं उसमें concurrency control लगता है. Even if you're talking about a website, there will be thousands of users will be accessing the website. If there's anything that that is for registration या booking या उससे related, you will need concurrency control. Okay. Recovering information corrupted by unexpected failure, जिसे हम backup and recovery बोलते हैं. This is also one of the feature provided by the DBMS under user administration, and it is very important feature because you cannot afford to lose your data due to any reason. Natural disaster भी हो गया, यहाँ पे सुनामी आ गया, फ्लड्स आ गए, साइक्लोन आ गया, आपकी कंपनी का डेटा नहीं ये हो सकता, तो there has to be some backup.
अगर मुंबई में कोई साइक्लोन आ गया या सुनामी आ गया, आपका पूरा सर्वर डिस्ट्रॉय हो गया, there has to be a backup of server in some other city or some other place which keeps all your data. कि अगर ये गलती से डिस्ट्रॉय भी हो गया, then we have backup. Okay, all this is provided by DBMS, Database Administrator, Database Management System. Sorry. Okay, all these features are provided by any DBMS, any database management system. Okay, now since we are talking about DBMS management system, मैंने आपको बोला SQL Plus comes with Oracle. जब आप Oracle डाउनलोड करोगे, SQL Plus ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है. अगर आपके पास MySQL, अगर आप MySQL डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके साथ MySQL कमांड लाइन डाउनलोड होगा. Correct. Now, the point is, I do not remember the password. Let me just check. Okay, this is the password, so I'm logged in. So, ये मेरा password है. This is MySQL. You can see your MySQL. This is MySQL. This works exactly the same as Oracle. जैसे मैंने बोला, इसमें ज्यादा कमांड का डिफरेंस नहीं है. It is exactly the same as Oracle. अगर मैं Oracle डाउनलोड करूंगी तो उसके साथ SQL प्लस आता है. अगर आप SQL सर्वर डाउनलोड कर रहे हो, SQL सर्वर मतलब मैं आपको बता रही हूँ, डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कौन से डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है. मेरे पास सब है, बिकॉज फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट आई नीड सम अदर DBMS, इसलिए मेरे पास सब है. अगर मैं SQL सर्वर डाउनलोड करी तो SQL सर्वर के लिए कमांड लाइन नहीं आता है. SQL सर्वर अगर आपको यूज करना तो उसके साथ आता है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. ये आपको SQL सर्वर के साथ डाउनलोड करना पड़ता है, वो एक साथ ही इंस्टॉल होता है. ठीक है, लास्ट में जब आप SQL सर्वर इंस्टॉल कर लेते हो तो लास्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आता है इंस्टॉल करने के. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट DBMS. ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस. Okay, I'll just say connect. It will get connected. ये डेटाबेसेस है, इसके अंदर टेस्ट नाम का और सैंपल नाम का डेटाबेस है जो मैंने क्रिएट किया. इसके अंदर टेबल्स है, स्टूडेंट डेटा नाम का टेबल है. अगर मुझे देखना है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट डेटाबेस नाम का टेबल है. अगर मुझे इसमें देखना है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है या स्टूडेंट डेटा टेबल के अंदर क्या है, तो यहाँ पे आके आई कैन जस्ट से सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम. ठीक है, एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगी, इट विल गिव मी द टेबल. So this is how Microsoft SQL Server Management Studio looks like. सबका काम वही है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना और टेबल के अंदर डेटा क्रिएट करना. ये टेबल भी वैसे ही क्रिएट होता है. अगर आपको नया टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे पूरा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, you have to write and create the table. Okay, so these are the different DBMS systems, management systems that are available to us. Okay, now अब मैंने आपको MySQL दिखा दिया. SQL प्लस तो हम यूज कर ही रहे, फर्स्ट डे से Oracle है ये. यस, आई एम अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ? नहीं ना? Why I feel like somebody is saying something in between. Okay, anyways, this is Oracle. ये जब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड इज रूट. देखो यहाँ पे लिख के आता है Oracle डेटा. सो दिस इज Oracle. तीन चीजें मैंने दिखाई आपको, MySQL, Oracle and SQL Server. They all do the same thing. They all are a DBMS system. आपको जिसके साथ आपको जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हो. All is available to you. Just give me 1 minute. Okay, anybody has any questions till here?
Is it clear till here? Okay. So file system versus DBMS. Redundancy of data ये मैंने last time भी discuss किया था. Can somebody tell me what do you data retrieval one time explain? Data retrieval मतलब removing data from the database. मतलब जो database में आपने जो data create किया है उससे आप retrieve कर रहे हो. Data तो create कर दिया. ओके टेबल क्रिएट कर दिया उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन भी डाल दिया. नाउ इफ यू वांट टू रिट्रीव दैट डेटा, आपको पता करना है कि क्या क्या डेटा है आपके पास, उसको डेटा रिट्रीवल बोलते हैं. और उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, दैट स्टेटमेंट. ओके ओके रिडंडेंसी ऑफ डेटा. कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी ऑफ डेटा? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था रिडंडेंसी ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है. लास्ट टाइम बताया था ना रिडंडेंसी ऑफ डेटा मतलब क्या होता है. रिडंडेंसी ऑफ डेटा मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, रिपीटेशन ऑफ डेटा. फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी ऑफ डेटा पता करना बहुत डिफिकल्ट है. ऑब्वियसली यू वुडंट नो. अगर आपने एक ही फाइल में एक ही रिकॉर्ड को 2 बार सेव किया या एक ही इंफॉर्मेशन को 2 बार सेव किया, उसे पता करना डिफिकल्ट है. DBMS में रिडंडेंसी ऑफ डेटा पता करना इजी. कैसे? वी हैव सीन लास्ट टाइम प्राइमरी की इज वन ऑफ द वे to ensure that the information is not redundant. What is primary key? What is primary key? Last lecture maybe we have discussed what is primary key. Yeah. So primary key is unique ID. That is every अगर हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर रहे हैं, then every row will have a separate data for that column. You cannot have 2 rows with the same data. So if we have in DBMS, मैं अगर एक ही रोल नंबर का डेटा 2 बार सेव नहीं कर सकती, because if I try to do that, it will give me a violation. Last time किया था ना हमने violation, constraint violation बता रहा था, right? We created a table with a primary key. और फिर आप अगर उस कॉलम में सेम वैल्यूज 2 बार डालने की कोशिश करते हो तो वो आपको दिखाता है constraint violated. Correct. So that is one way of ensuring that the data is not redundant, the data is not replicated or duplicated in the table. But why am I not getting a response today? क्यों सिर्फ एक या 2 लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? What do you mean by inconsistency of data? Inconsistency of data मतलब क्या? तो फाइल सिस्टम में बहुत पॉसिबल था कि डेटा जो है हमारा इनकंसिस्टेंट हो. अभी मैंने आपको इनकंसिस्टेंसी बताया था. सो सपोज एक टेबल है जिसमें अगर फाइल सिस्टम है तो ऐसा हो सकता है कि मैंने एक एम्प्लॉय या एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सेव किया ऊपर और फिर मैंने वापस से नीचे सेम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सेव किया. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के एज में 16 17 लिखा, तो यहाँ पे मे भी मुझसे गलती से 18 लिखा गया, या फिर मैंने दोनों में 17 लिखा था. देन स्टूडेंट ने आके मुझे बोला कि उसका एज गलत है, इट शुड बी 19. सो आई अपडेटेड ओनली एट वन प्लेस. आई डिड नॉट अपडेट एट द अदर प्लेस क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये डुप्लीकेटेड डेटा और एक और जगह पे प्रेजेंट. तो क्या हो रहा है, एक ही इन वन सिंगल डेटाबेस there is one place where the student age is 19, there's another place where the student age is 17. So the data is not consistent, it is not same throughout the database. क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, क्योंकि मल्टीपल प्लेसेस पे सेम डेटा है. मल्टीपल प्लेसेस पे सेम डेटा होता है तो ये बहुत पॉसिबल है कि डेटा कुड बी इनकंसिस्टेंट बिकॉज यू माइट नॉट अपडेट इट एवरीवेयर.
और सपोज लेट्स से यूजर ने स्टूडेंट ने कॉलेज छोड़ दिया, आई डिलीटेड फ्रॉम हियर, I didn't know there is a duplication of data, so I did not delete from here. So again, the database is inconsistent. It is containing the data which should not be there in the, I mean, in the file has a data which should not be actually present. Okay, whereas in a database, inconsistency of data is removed because duplication नहीं है, duplication नहीं है तो obviously inconsistency भी remove हो जाएगी. समझ में आ रहा है? Are you understanding how they are related? Redundancy and inconsistency. Now difficult data access. Now if I tell you कि ये particular student का information निकालो from the table, या फिर मुझे सारे वो students का information निकाल के दो जिनका age 16 से कम है, it is difficult in file system ना, you have to manually do it. If the data is arranged in a ascending order, it might be easy. Arranged in ascending order of the age, it might be easy. But still, you have to manually copy all the student data. Whereas in DBMS, you just have to write the query. You just have to write select जो भी information चाहिए, सब चाहिए तो abstract from the table where age is less than 16. That's it. You don't have to manually go scan the entire table and pick the data. So the access is easier in DBMS, whereas it is difficult in file system. Unauthorized access file system में it is very difficult to stop somebody from accessing it. मतलब कोई भी खोल सकता है ना कोई सी भी फाइल. बहुत difficult है कि ये फाइल मैं लॉक करूँ. अभी में भी है, but पहले उस समय difficult था कि ये फाइल सिर्फ इतने ही people access करें. But whereas this is possible in DBMS, I already told you. You can only access those tables which you are authorized to access, or for which you have been given rights. No concurrency control. अभी मैंने बताया no concurrent access. फाइल सिस्टम में अगर 10 लोग एक साथ एक ही फाइल को अपडेट कर रहे हैं तो हो जाएगा अपडेट, बट डीबीएमएस में नहीं होगा ऐसा. नो बैकअप एंड रिकवरी. पहले फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पूरा फाइल गया तो गया. There's no way to backup and recovery. This I'm talking before DBMS. Now there are systems which can backup files also, but I'm talking about this is before DBMS. जब ये realize हुआ तो DBMS में backup and recovery डाला. Now you can also recover your files. Okay, clear. Advantages of DBMS: better data transferring. Okay, this also you will understand when we do fewer more queries और detail में देखेंगे तो क्या होता है ना, अगर suppose मुझे एक ही table related मतलब एक टेबल मैंने क्रिएट किया और मुझे ना दूसरा टेबल क्रिएट करना है जिसमें ऑलमोस्ट सेम डिटेल्स चाहिए. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव अ टेबल जिसमें करंट एम्प्लॉइज है, ठीक है, और जो भी एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं ना, उनका जैसे ही वो छोड़ के जा रहे हैं वैसे क्या होना चाहिए, मेरे जो करंट एम्प्लॉय के टेबल से ना वो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए और वो प्रीवियस एम्प्लॉय या फिर एक्स एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट हो जानी चाहिए. ओके, this is very easy with DBMS. There are ways of doing it. Triggers बोलते हैं, triggers use करके कर सकते हैं, which is very easy to implement और you don't even have to bother. आपने एक बार लिख दिया वो कोड तो जितनी बार उस टेबल से रो डिलीट होगा ना, वो रो जाके एक से एम्प्लॉय वाले टेबल में ऐड हो जाएगा. You just have to write the code once for that particular. So data transferring is very easy. Are you understanding what I'm trying to say? Let's say कि पूरा का पूरा बैच जैसे पास आउट हो जाता है तो मेरे करंट स्टूडेंट से हटके एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स में जाना चाहिए, करेक्ट. सो व्हेन आई जस्ट से कि लेट्स से आपका पूरा ईयर खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली जाके उस टेबल के सारे रोज को डिलीट करूंगी. आई जस्ट से डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम दैट टेबल. जैसे मैं डिलीट करूंगी उस टेबल से वो सारे के सारे रोज जाके एल्यूमिनाई टेबल में ऐड हो जाए. I don't have to manually do this. I don't even have to manually delete. There is only one command which will help you delete the entire table. And there is only one command that you have to execute one time only on the table. And when you do that, नहीं जितनी बार delete operation perform होगा उस table पे उतनी बार वो rows जो भी आप delete कर रहे हो उस table से that will get added to another table जिस भी table में आपको डालना है. समझ में आ रहा है?
Better data security, data integration, we have already talked about. Minimize data inconsistency, ये भी मैंने आपको बताया. Faster data access, ये भी बताया, because आपको simply एक query लिखना है, आपका data फटाफट access हो जाएगा. Better decision making, why? Because in the file system, अगर यहाँ पे क्या है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चों को सबसे कम मार्क्स आ रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली लिखूंगी सिलेक्ट सब्जेक्ट नेम वेयर मार्क्स इज लेस देन सम परसेंटेज एंड आई विल सी ओके. ये और ना उसमें भी देयर आर वेरियस फंक्शंस जो अभी तक हमने सीखा नहीं, जिससे आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है. ओके, सो सपोज 5 लोग मैथ्स में फेल हो रहे हैं, 3 लोग इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और 4 लोग हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो कैटेगराइज कि मैथ्स में कितने लोग फेल हुए, वो वैसे भी आपको क्वेरी दे सकता है. वी हैव नॉट डन येट बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो आपको पूरा चीज ऐसे आंखों के सामने मिल रहा है कि ओके मैथ्स में 5 लोग फेल हो रहे हैं, तो मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करना चाहिए या ब्रिज कोर्सेज या रेमेडियल कोर्सेज कंडक्ट करना चाहिए. सो दैट हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जब डेटा इतनी इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, दैट कैन हेल्प द मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस, बेटर डिसीजंस. व्हेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट फाइल सिस्टम, उसमें से इंडिविजुअली आपको जाके डेटा निकालना पड़े. देयर इज नो वे यू कैन फाइंड these kind of things in file system. Okay? Increased end user productivity, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमें यूज डालना नहीं पड़ता डेटा रिट्रीव करने में. हम बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे, मतलब अभी तक तो हमने कमांड्स देखे ही नहीं, अभी बेसिक ही कमांड्स देखे आपने. ऐसे बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल है which helps you to do so many things with the database. Arrange data in such a way, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि कितने लोग मैथ्स में फेल हुए, कितने लोग इंग्लिश में फेल हुए, वैसा काउंट भी दे सकता है. इसके लिए भी फंक्शंस है. So there are so many functionalities available to you, so you don't have to invest much time just finding the data. So since you do not waste so much time, your productivity is increased. That means you can use that same time to do other work. Is this clear? Then we come to disadvantages of DBMS. Obviously it is increased cost. मैं और आप जो यूज कर रहे हैं वो है a version which is a free version, but this cannot be used in the organization because free version will not give you a lot of features जो एक organization में जरूरी होता है. So you have to use the licensed version in the company. Yes, so when the licensed version is used, it is obviously going to increase the cost. File system में तो कोई cost नहीं था, it comes along with the Windows, along with the Office. Okay. Management complexity. Now अगर हम इतना डेटा स्टोर कर रहे हैं, इतना कुछ स्टोर कर रहे हैं, तो उसे मैनेज भी करना होगा, इसलिए हमें एक DBA चाहिए होता है जो उस डेटा को अच्छे से मैनेज कर सके. सो या देयर इज सम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी. मेंटेनिंग करेंसी मतलब करंट प्रॉपरली डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं, ये सब DBA का काम है देखना, बट ये एक टास्क है. फ्रीक्वेंट अपग्रेड एंड रिप्लेसमेंट साइकिल, यू हैव टू फ्रीक्वेंटली अपडेट योर DBMS. क्योंकि नए नए यू नो एनी सॉफ्टवेयर यू हैव टू फ्रीक्वेंटली अपडेट बिकॉज नए नए अपडेट्स आते रहते हैं. ओके, कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ DBMS. नाउ पहली बात तो DBMS इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज डिस्क स्टोरेज, जिसके अंदर आपका सारा डेटा स्टोर है. सो डेटा स्टोर्ड है. इंडेक्सेस, इंडेक्स हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था. इंडेक्स इज नथिंग बट जैसे बुक का इंडेक्स होता है वैसा ही एक इंडेक्स है जहाँ पे आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो एंड देन यू कैन कीप अ पॉइंटर नेक्स्ट टू इट व्हिच विल टेल यू वेयर द एग्जैक्ट डेटा इज स्टोर्ड. ओके, सो इंडेक्सेस यहाँ पे स्टोर्ड है. ओके, डेटा है, इंडेक्सेस है. डेटा डिक्शनरी और स्टैटिस्टिकल डेटा. डेटा डिक्शनरी इज नथिंग बट डेटा डेटा अबाउट डेटा इज नोन है, मतलब डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटा के बारे में डेटा स्टोर किया जाता है. सो डेटा डिक्शनरी के अंदर यू नो ये टेबल का स्कीमा स्टोर किया रहेगा. सो डेटा में क्या है, टेबल है, टेबल के अंदर क्या डेटा, ये सब स्टोर है. ठीक है, डेटा डिक्शनरी में क्या स्टोर है, डेटा डिक्शनरी के अंदर ये स्टोर होगा कि इस टेबल का जो कॉलम है उसका क्या डेटा टाइप है, कौन सा प्राइमरी की है, कॉलम में कौन सा प्राइमरी की है, कोई और कॉलम में कोई कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं क्या, तो वो सारी चीजें डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है. ठीक है,
एंड स्टैटिस्टिकल डेटा जिसके अंदर आप लास्ट कौन सा टेबल कब अपडेट हुआ था, किसने कौन से लॉगिन कौन से यूजर ने लास्ट इस टेबल को अपडेट वर्क किया था, इस पे कितने बजे वर्क किया था, date, time, all those things are stored in statistical data. So the very first thing is the disk storage. All this is information is stored on your disk, hard disk. जो भी server है उसका hard disk. Okay. The second part is the storage manager. Storage manager का क्या काम है? Data store करना, obviously. Okay. So storage manager में क्या क्या आता है? Buffer manager and file manager. Now I'll tell you what is buffer manager. File manager का so simple ये काम है कि data जो भी यूजर जो भी डेटा पास कर रहा है उसको टेबल में डालना, और या इंडेक्स से रिलेटेड कुछ है तो उसको इंडेक्स में डालना, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो यहाँ डेटा डिक्शनरी में मतलब हम जो बोलते हैं ना कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पर्टिकुलर टेबल सिर्फ ये यूजर यूज कर सकता है, ऑथराइजेशन वो हम डेटा डिक्शनरी पे देते हैं, क्योंकि डेटा डिक्शनरी के अंदर है ना सारे टेबल्स डिफाइन है, सारे टेबल्स, और वो टेबल का क्या स्कीमा है, मतलब स्कीमा एज इन इस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, कौन सा कॉलम इसमें प्राइमरी की है, कौन से कॉलम में नल वैल्यूज नहीं जा सकता, और भी बहुत कंस्ट्रेंट है जो हम कॉलम्स पे लगा सकते हैं, वो सब डेटा डिक्शनरी में डिक्लेयर होता है। तो इसलिए अगर मुझे किसी को ऑथराइजेशन वगैरह देना है वो भी डेटा डिक्शनरी में ही जाए कि ये टेबल पे कौन सा यूजर कौन सा राइट्स परफॉर्म कर सकता है। अंडरस्टूड। Then there's a transaction manager. You remember I told you जब हम concurrency की बात कर रहे थे मैंने आपको बताया था transaction manager is one which takes care of concurrency. Okay? So transaction manager. Buffer manager का क्या काम है? देखो जब मैंने आपको transaction के बारे में बताया था मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 10 स्टेटमेंट है जिसमें से 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और फिर कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो जो वो 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं वो भी रोल बैक हो जाते हैं, करेक्ट। तो क्या होता है जब तक कि सारे के सारे 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते ना तब तक आपका डेटा डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका सारा डेटा बफर में स्टोर होगा, एक बफर में। तो फॉर दैट टाइम वी नीड अ बफर मैनेजर। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो ये हो गया स्टोरेज मैनेजर। इसके ऊपर है क्वेरी प्रोसेसर। ओके, बफर मैनेजर का क्या काम है? अगर कोई सपोज मैंने ट्रांजैक्शन बोला जिसमें 10 स्टेटमेंट है, अभी हमने क्या बोला जब तक कि पूरा 10 स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा या किसी रीजन से बीच में अगर फेल हो जाता है मेरा ट्रांजैक्शन तो कोई भी स्टेटमेंट का जो इफेक्ट है वो दिखना नहीं चाहिए डेटाबेस में, करेक्ट। या तो पूरा का पूरा 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ही उसका इफेक्ट दिखना चाहिए डेटाबेस में, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज इनकंसिस्टेंसी होगी, राइट। द एग्जांपल आई गिव यू, ए अकाउंट से अगर 10 रुपए हम ट्रांसफर करके बी अकाउंट में डाल रहे हैं, ए अकाउंट से कट हो गया लेकिन बी अकाउंट में गया ही नहीं और बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंसी हो गया ना। ए के अकाउंट में 10 रुपए कम है, बी अकाउंट में 10 रुपए ज्यादा है, यानी 10 रुपए कम गए। ओके, सो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा तो ही इफेक्ट होना चाहिए डेटाबेस में, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो तब तक जब तक कि पूरा का पूरा नहीं होता है तब तक the information is not reflected in the database but it is stored, that changes are stored in the buffer manager or is stored or is executed by the buffer manager. Understood? Arshad? Okay, the next part is query processor. Query processor का क्या काम है? Query execute का। okay? तो यहाँ पे पहले DDL इंटरप्रेटर, अगर आपको याद है तो हम स्टार्टिंग में किया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। आज मैंने डेटा डेफिनेशन पे बहुत टाइम स्पेंड किया। सो डेटा डेफिनेशन मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल या मॉडिफिकेशन ऑफ द टेबल या डिलीशन ऑफ द टेबल, दैट इज नोन एज DDL। तो DDL इंटरप्रेटर का काम क्या है? DDL कमांड्स को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? रन करना, एग्जीक्यूट करना, कन्वर्ट करना, जिसको आपका ओरेकल समझ सके और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। यहाँ से DML क्वेरीज जो आती है, DML क्वेरीज क्या? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आप इंसर्ट अपडेट ऑफ द डेटा कर रहे हो, वो क्वेरीज जो आती है वो कौन करेगा? DML कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर।
तो जो भी डीएमएल क्वेरीज है वो आपका डीएमएल कंपाइलर या ऑर्गेनाइजर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, वो कंपाइल करके कन्वर्ट करेगा और फिर क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को देगा जो उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है उसको ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कि आपका मशीन उस चीज को समझ सके, तो उसको ऐसे इसमें कन्वर्ट करेगा जिससे आपका क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन इवैल्यूएट कर सके। देन वी हैव कंपाइलर एंड लिंकर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम कोड। ये मैं ऊपर पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। इसके ऊपर है टाइप्स ऑफ यूजर्स। ओके, हमारे पास 3-4 टाइप के यूजर है। नेव यूजर, नेव यूजर्स आर जो हम जैसे आप हो गए और मैं हो गए, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ डेटाबेस में से सिलेक्ट वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको नेव यूजर्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर समबडी हु राइट अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वो एसक्यूएल कोड्स को एम्बेड करते हैं या एसक्यूएल क्वेरीज को एम्बेड करते हैं, तो प्रोग्रामर्स हो गए, ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं। देन वी हैव एनालिस्ट, जिनका काम क्या, डेटाबेस से डेटा एनालिसिस करना, बिजनेस एनालिसिस करना। एंड देन वी हैव डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका काम क्या है, देखना कि सब कुछ बराबर चल रहा है। तो ये 4 टाइप के यूजर्स हैं। और ये एप्लीकेशन जो हम हैं, हम क्या करते हैं, हमें एक एप्लीकेशन इंटरफेस दिया हुआ है, जैसे एसक्यूएल प्लस क्या एक तरह का इंटरफेस है जिसके थ्रू हम ओरेकल एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दिखाया वो क्या एक तरह का इंटरफेस है जिससे आप एसक्यूएल सर्वर एक्सेस कर सकते हो। तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम इंटरफेसेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कैसे एक्सेस करते हैं डीबीएमएस को, प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रोग्राम्स में एम्बेडेड है। ये एनालिस्ट, उनके पास टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो डेटा को एक्सेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके थ्रू वो एक्सेस करते हैं। तो ये जो इंटरफेसेस ये जो है और ये प्रोग्रामर्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कंपाइलर और लिंकर चाहिए जो प्रोग्राम में से आपके डीएमएल क्वेरीज को रीड कर सके और उस डीएमएल क्वेरीज को रीड करके डीएमएल क्वेरीज को दे सके, और फिर वो कंपाइलर डीएमएल कंपाइलर को देगा जो उसको कन्वर्ट करेगा और फिर आपका क्वेरी इंजन उसको इवैल्यूएट करेगा। तो जब आप अपने प्रोग्राम्स लिखोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर कोड एम्बेड करोगे जिसके थ्रू आप अपना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने कोई वेबसाइट बनाया जिसमें आप रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर से डेटा मांग रहे हो या मतलब रजिस्टर करने के लिए डेटा मांग रहे हो, तो डेटा सब यूजर ने डाला तो उसको आपको डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा ना। वो सारा डेटाबेस आप यूजर से लोगे डेटा, उसको डेटाबेस में स्टोर करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, कोड के अंदर एसक्यूएल क्वेरीज लिखने वाले हो। Okay, is this clear? Yes. Can I get more responses out of 28 students? मुझे सिर्फ 2-3 लोगों का response आ रहा है। Okay. This is DDL, DML and DCL commands. ये हमने पहले भी बात किया है इनके ऊपर। DCL is control language, जिससे आप privileges grant या revoke कर सकते हो, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि as a admin you can grant some privileges कि कौन क्या कर सकता है कौन से टेबल पे, और फिर आप उसको रिवोक भी कर सकते हो, नहीं चाहिए, यूजर ने कंपनी छोड़ दिया, यूजर का या सॉरी एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दिया या एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट चेंज हो गया, so you don't want that employee to access that table anymore, so you can simply revoke that right. Okay. Yes, लास्ट इसमें हमने कौन सा टेबल क्रिएट किया था जिसमें प्राइमरी की डाला था, I don't remember the name of the table. Yes, so your ID was a primary key.
देखो आईडी इज अ प्राइमरी की, डीईएससी एम्प्लॉय मतलब आई एम सेइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय। ये जो डिस्क्रिप्शन है ना ये स्टोर होता है आपका डेटा डिक्शनरी में। याद है मैंने बोला था डेटा डिक्शनरी के अंदर स्कीमा टेबल कैसे बना हुआ है वो स्टोर होता है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ स्टोर होता है आपका डेटा डिक्शनरी में। When I say DESC employee, I am asking for description of the employee table. मतलब क्या रोज है उसमें, हर रोज का डेटा टाइप क्या है। नॉट नल, नॉट नल मतलब ये प्राइमरी की है। अगर हमने प्राइमरी की मतलब इसमें हमको वैल्यू देना ही है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इस कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया। ओके, तो इफ आईडी इज प्राइमरी की आई कैन नॉट, अगर मुझे इस टेबल में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू द टेबल नेम इज EMPLOY की सिंगल। ओके, वैल्यूज आई कैन नॉट इंसर्ट। अभी इसमें 101 102 ऑलरेडी है ना, अगर मैं 102 फिर नेम में आई कैन इंसर्ट सेम नेम अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं श्वेता वापस से डाल सकती हूँ और एज लेट्स से आई से 16 and I enter. So it is saying unique constraint violated. That means this is a primary key. You have to provide unique values. If you are not providing unique values, then you will not be able to insert. तो ये same query में ना मैं सिर्फ इसको 103 कर देती हूँ and then I enter. Now it says one row created. Select asterisk from employee. So you can see that the same. यहाँ पे श्वेता श्वेता में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमने प्राइमरी की नहीं रखा। वो हमने प्राइमरी की रखा होता तो यहाँ पे वापस से बोलता कि यूनिक की कंस्ट्रेंट वॉयलेट। नो, नल डजंट मीन जीरो, नल मीन्स नो वैल्यू। तो अगर मुझे नेम में कोई वैल्यू नहीं डालना है तो उसकी जगह पे नल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। और अगर मुझे सारे कॉलम में वैल्यू नहीं डालना देन आई हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द कॉलम, आईडी एंड नीड, सिर्फ इसमें ही वैल्यू डालनी है। ऐसे वैल्यूज मुझे नेम में नहीं डालना है, सो आई हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द कॉलम्स। सारे कॉलम में डालना तो जरूरत नहीं है, बट अगर किसी कॉलम में नहीं डालना यू हैव टू प्रोवाइड द नेम्स ऑफ द कॉलम्स। सो लेट्स से 104 एंड द एज इज 18। वन रो क्रिएटेड, हमने नेम नहीं डाला है तो हम ये करते सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे कुछ नहीं है, null means nothing, no value, it does not mean zero. Zero is a value. जीरो मैं किसी कॉलम में जीरो वैल्यू डाल सकती। जीरो इज अ वैल्यू, null means no value. I don't know the value, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है और that value is not available, whatever. Null means no value is present. Okay. ठीक है, चलो देन आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे बिकॉज मुझे जो करना था वो हो गया। ये पीपीटी भी खत्म हो गई है। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज I'll stop here for today.